topic is cultivation practices in maize. Hello everyone, myself Sachin Kumar. I am student of BSc Honors Agriculture, second year, fourth semester. Hello everyone, myself Ravikant Kumar. I am a student of BSc Honors Agriculture, second year, fourth semester. Hello everyone, my name is Amit Kumar and I am a student of BSc Agriculture Honors, second year, fourth semester. Maize, also known as corn, botanical name Gia maize, chromosome number 2n is equal to 20. It is a cereal crop belong to the family Poaceae. It is the most staple crop widely grown for particular area like America, Africa and Asia. Importance of maize. Maize is a highly versatile crop used in various purposes. First, as a food. Maize is a staple food for people all around the world. It is consumed in various forms such as cornmeal, flour and whole kernel. Maize is also used as a fodder in poultry and livestock management. Maize is also used in industrial product making such as ethanol, highly fructose corn syrup and other industrial products. Maize is also important from economic point of view because it generates high income, provide labor and opportunity to farmer, trade and a stakeholder. एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेज 2020-21 में इसका एरिया 193 मिलियन हेक्टेयर था, जिसमें इसका टोटल प्रोडक्शन 1147 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स हुआ था। मेज का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा यूएसए, ब्राज़ील, मैक्सिको, चाइना एंड इंडिया में किया जाता है। भारत में इसका कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड पंजाब में किया जाता है। प्रोडक्शन के मामले में इंडिया तीसरे स्थान पे है, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना। बेसिकली मेज का कॉर्न के बेसिस पे 7 क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट है फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न इसका बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज इंडोडाटा। सेकेंड आता है डेंट कॉर्न, इसका बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज इनोडाटा। एंड थर्ड में आता है इसका कॉर्न के बेसिस पे स्वीट कॉर्न, इसका बोटेनिकल नेम जिया मेज सचेराटा। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज पॉपकॉर्न, इट्स बोटेनिकल नेम इज जिया मेज इबेराटा। एंड फिफ्थ इज वेक्सिकॉर्न, इट्स बोटेनिकल नेम इज जिया मेज ट्यूनिकाटा। एंड सिक्स्थ इज पॉडकॉर्न, इट्स बोटेनिकल नेम इज जिया मेज सर्टिना। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज फ्लोर कॉर्न, इट्स botanical name is Gia maize amalaceae. And weather requirement for maize cultivation. Maize is a warm season crop. It requires 20 to 30 degrees Celsius for optimum growth. It requires 10 to 12 degrees Celsius for better germination. Temperature above 35 degrees Celsius lead to the reduction of yield and canal damage. It required proper moisture during the critical stages. And heavy wind lead to the reduction of yield and loss. मेज की वैरायटी की हम बात करें तो हाइब्रिड वैरायटी में गंगा 11, राजेंद्रा H1 H2 एंड प्रभात। कंपोजिट वैरायटी की हम बात करें तो प्रभात, प्रताप, श्वेता एंड गौरव। में हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 70 से 80%, प्रोटीन 6 से 13%, फैट 4%, ऑयल 2 से 6% एंड शुगर 1 से 3%। 100 ग्राम मक्का खाने पे हमें 365 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलता है। Soil and field requirement for maize cultivation. It required well-drained, sandy loam soil, free from weed and diseases, with a pH range of 5.5 to 7.5. A field preparation 2 to 3 deep plowing with the application of 12 to 13 tons of well-rotten FYM per hectare and labeled with labeler for proper distribution of irrigation water. Seed rate and spacing for maize cultivation. It required 20 to 25 kg per hectare for composite variety and 15 to 20 kg per hectare for hybrid variety. Spacing about for Kharif season is 60 to 70 centimeter for row to row and 20 to 30 centimeter for plant to plant. For Rabi season it's about 40 to 60 centimeter plant row to row and 20 to 30 centimeter plant to plant.
जैसा कि मेज दोनों सीजन में लगाया जाता है, रबी में भी और खरीफ में भी। इंडिया में मोस्टली बिहार में मेज तो खरीफ में ही लगाया जाता है। जैसे कि इसका प्लांटिंग करते हैं 15 जून से 15 जुलाई, और इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हम। बेसिक न्यूट्रिशन होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसका नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और पोटेशियम 75 kg पर हेक्टेयर, एंड पोटास 75 किलो पर हेक्टेयर। Method of irrigation water in maize are: first, flood irrigation. Flood irrigation, it is the method in which higher wastage of irrigation water. It efficiently use of irrigation water is about to 15 to 25%. And next, second one is a sprinkle irrigation. It having also wastage of water. It efficiently use of irrigation water is having the 70 to 75%. And last one is drip irrigation. It is the most effective irrigation method in which it having the efficiently use of irrigation water is about to 80 to 95% of irrigation water. मेज में लगने वाले मेजर इंसेक्ट पेस्ट की बात किया जाए तो स्टेम बोरर। इसका सिम्टम्स होता है पौधों के बीच के तने का जो भाग होता है उसको होल्स कर देते हैं, जिसके कारण मेरा जो प्लांट्स होता है वह वीक हो जाता है। जो इसमें लगने वाले जो यंग लार्वा होते हैं वह न्यूली लीफ को खा जाते हैं, जिसके कारण मेरा प्लांट होता है वह कमज़ोर हो जाता है। कंट्रोल मेजर की बात करें तो हम रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज करेंगे और इंटरक्रॉपिंग करेंगे विथ द हेल्प ऑफ कैनोपी 4:1 में, एंड वीड को डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरा है सूट बग। इसका सिम्टम्स यह होता है कि यह प्लांट के सेल को सक करता है, और जब यह प्लांट पर अटैक करता है तो यह अनहेल्दी प्लांट दिखने लगता है और तथा येलो कलर का इसकी पत्तियां हो जाती हैं, और इसका प्लांट ग्रोथ रुक जाता है। तो यह प्लांट जो होता है नीचे की ओर झुक जाता है, जिसके कारण पेनिकल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। कंट्रोल मेजर की बात करें तो प्लांट पे 500 ml डाइमिथोएट 30 EC का स्प्रे करेंगे। मेज में लगने वाले मेजर डिजीज की हम बात करें तो बैक्टीरियल स्टॉक रोट, जो इरविना डिजोल्व के कारण होता है। इसके सिम्टम्स का बात करें तो बैक्टीरिया तने वाले पोर्शन को सड़ा गला देते हैं, जिसके कारण हमारा जो तना होता है वह कमज़ोर हो जाता है। जब तेज़ हवाएं चलती है या नॉर्मल हवाएं चलती है तो इसकी तना नीचे की ओर झुक जाती है। कंट्रोल मेजर की हम बात करें तो वाटर मैनेजमेंट ज़्यादा अमाउंट में नहीं करेंगे या फ्लडिंग के कंडीशन हम नहीं लाएंगे, और एंटीबायोटिक का यूज करेंगे और रेजिस्टेंट वैरायटी का हम यूज करेंगे। दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू। इसका सिम्टम्स यह होता है कि इसकी पत्तियों का कलर भूरा एंड पीला होने लगता है। इसमें सफ़ेद रंग के फफूंद का विकास होता है, जिसके कारण पौधे का विकास रुक जाता है और तथा दानों के बिना ही भुट्टा का निर्माण हो जाता है। कंट्रोल मेजर की हम बात करें तो डीपोलोइंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे पल्सेस के साथ। तीसरा है लीफ ब्लाइट। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके कारण पत्तियां पीला दिखाई देने लगती है। और इसका हार्वेस्टिंग करते हैं जब करनाल येलो कलर में आने लगेगा, एंड इसका स्टाइल और ईयर जब डार्क ब्राउन होने लगेगा तो इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग फेज में इसका दो तरह से करते हैं, या तो मैनुअली करते हैं या तो मैकेनिकली करते हैं। और इसका लगभग यील्ड आता है 55 से 65 क्विंटल पर हेक्टेयर।